Hello students, today we will solve numerical based question of chapter valuation of goodwill from book T.S. Grewal edition 2021. Before starting the questions, we will first discuss our first method of calculating goodwill, which is average profit method. So the first step under average profit method is calculation of average profit. Average means mean profit. How this mean profit will be calculated? We will do total of profit divided by number of years. Now while taking this profit, we have to consider only normal profit. एक बिजनेस फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म अपने नॉर्मल प्रॉफिट को कंसिडर करेगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. Now how this normal profit is calculated? See, we are given net profit from which we have already subtracted abnormal losses. तो इन abnormal losses को हम add कर देंगे. And already the business has added abnormal gains. तो इन abnormal gains को क्या कर देंगे हम? Subtract कर देंगे. After calculating normal profit and calculating average profit, the next step is valuation of goodwill. And what is the formula of calculating goodwill? Goodwill is average profit multiplied by number of purchase year. What is this purchase year? ये purchase year क्या है? Purchase year वो year है जब firm एक same amount of profit expect करना शुरू कर देती है अपने business से. It refers to that year from which a firm is expecting to earn same amount of profit. कि कम से कम इतना तो stable profit है that a business will start earning. So the year from which the business will have a constant or same amount of profit is known as purchase year. Let us further understand how normal profit is calculated. See, I will take you back to your class 11th where you have learned to prepare profit and loss account. बेटा जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो आपने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेमिंग फ्यू, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, कमीशन, अपने बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट किया होगा. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या एबनॉर्मल लॉसेस को भी आपने सब्ट्रैक्ट किया होगा. दीज आर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस बाय थेफ्ट, फायर, अर्थक्वेक एंड इवन इंटरेस्ट ऑन लोन. ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपके नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, पर इनको आपके नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट किया गया. दैट इज व्हाई वी आर एडिंग दिस abnormal loss to calculate normal profit. Similarly, if we talk about gross profit, our gross profit is our operating income. But this gain on sale of fixed asset, interest received on investment, winning from lottery, racing horses, ये हमारे abnormal gain है जिन्होंने हमारे net profit को बढ़ाया होगा. So as to calculate our normal profit, we have to subtract it. So let us recapitulate how normal profit is calculated. Normal profit को calculate करने के लिए हमें अपने net profit में से अपने abnormal gains को minus करना है और अपने abnormal losses को add करना है. I hope calculation of normal profit is clear. Now we will begin with our numerical based question of book T.S. Grewal. Starting with our first question, goodwill value करनी है 3 year purchase given है 4 year के average profit के basis पर. हमारे पास 4 year का profit given है, हमारे पास 18 का प्रॉफिट गिवन है 12,000, हमारे पास 19 का प्रॉफिट गिवन है 18,000, हमारे पास 20 का प्रॉफिट गिवन है 16,000, हमारे पास 21 का प्रॉफिट गिवन है 14,000. एवरेज कैसे कैलकुलेट किया? हमने इन सभी प्रॉफिट्स का टोटल किया और उसे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया. आफ्टर डिवाइडिंग इट विद नंबर ऑफ ईयर वी गॉट आवर एवरेज प्रॉफिट. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट गुडविल? It is average profit multiplied by number of purchase year.
तो परचेज ईयर बेटा हमें गिवन है 3 और एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 15, तो हमारी गुडविल कितनी हो गई 45,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हमें प्रॉफिट गिवन है 5 इयर्स का और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। हमारा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट्स गिवन है 4 लाख, 3 लाख 98, 4 लाख 50, 4 लाख 45 एंड 5 लाख। हम इन 5 साल के प्रॉफिट्स का जब टोटल करेंगे टोटल आएगा 21 लाख 93,000 और जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे what will be our average profit? It is 4,38,600. Now how we can calculate our goodwill? We have to simply multiply this average profit with number of year of purchase. So what are the number of year of purchase given in the question? It is given 4. So what will be our goodwill? It will be 4,38,600 multiplied by 4. Now starting with our third question in which we are given profit of 5 years. 2021 profit is 8 lakh, 20 it is 15 lakh, 19 it is 18 lakh. In 18 there is a loss of 4 lakh. So it will be subtracted. In 2017 again we are having profit of 13 lakh. हम इन सभी प्रॉफिट्स का टोटल करेंगे और उसे 5 से डिवाइड करेंगे. With this we will get our average profit which is standing at rupees 10 lakh. This 10 lakh when multiplied with number of purchase year we will get our goodwill amounting to rupees 30 lakh. Now coming to our next question, question number 4. We can read here that Anu, Baby and Chetan are partners. जिनकी profit sharing ratio equal है. They have decided that now Deep should enter the partnership firm. So it is a case of reconstitution. In our theory video, I have already told you that goodwill is valued at the time of reconstitution of partnership firm. So we can see reconstitution here. For this purpose, goodwill is valued at 100% of average annual profit of previous 3 years or 4 years, whichever is higher. हमें पिछले 3 साल का भी एवरेज निकालना है और पिछले 4 साल का भी एवरेज निकालना है. So the formula for calculation of average profit is total of normal profit divided by number of years. पहले हमने चारों साल का एवरेज निकाला स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 टू 2021. प्रॉफिट्स है हमारे पास 2,88,000, 1,81,800, 1,87,200 एंड 2,53,200. टोटल आ रहा है 9,10,200 और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 2,27,550. अब 3 साल का एवरेज लेंगे तो ये 3 साल कब से शुरू होंगे? ये 3 years स्टार्ट होंगे 2021 से. उल्टा देखेंगे. So we will take profit of 2021, we'll take profit of 2020 and we will take profit of 2019. That means profit of 2018 will be ignored here. हम तीनों साल के प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और उसके बाद उसे 3 से डिवाइड करेंगे. So our average profit is 2,19,000. हमें 100% की गुडविल रखनी है एवरेज प्रॉफिट का. So goodwill whichever is higher has to be taken. So higher value is rupees 2,27,550. I hope this question is clear. Moving ahead with our next question, question number 5. हमारे पास गुडविल वैल्यू करने के लिए बेसिस ऑफ 1.5 year ऑफ परचेज ईयर गिवन है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड दैट प्रॉफिट इज 1 lakh. सेकेंड ईयर के लिए लिखा है कि वो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का ट्वाइस है, सो इट विल बी 2 lakh. और थर्ड ईयर का जो हमारा प्रॉफिट है
it is 1.5 times, 1.5 times of second year's profit. तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आया 2 लाख, उसका 1.5 टाइम्स आ गया 3 लाख. After calculating these average these profits, now we have to calculate average profit, which is total of 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh. Average करेंगे 2 लाख आएगा. Purchase year 1.5 given है, so our goodwill will be 3 lakh. I hope this question is clear. Coming to question number 6. Purvi are partners in a firm. Ratio given at 2:1. Now they have decided that Pur should join them. For this purpose, goodwill is valued at 4 times the average annual profit of previous 4 years or 5 years, whichever is higher. तो जो भी प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आएगा उसी के बेसिस पर हम गुडविल निकालेंगे. अब हमारे पास पिछले 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है, तो सबसे पहले हमने इन 5 साल का एवरेज निकाला. 14 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000, टोटल आ रहा है 70,500. 5 से डिवाइड किया बेटा आया 14,100. नाउ वी विल आल्सो कैलकुलेट एवरेज ऑफ 4 years. 4 years में बेटा कौन सा ईयर हम एक्सक्लूड करेंगे? वी विल एक्सक्लूड 2017. सो विल स्टार्ट विथ ईयर 18. सो 18 का प्रॉफिट है 15,500, 19 का 10,000, 20 का 16,000 और 21 का 15,000. चारों साल के प्रॉफिट का जब हमने एवरेज निकाला तो हमारा एवरेज आ रहा है 14,125. नाउ गुडविल वैल्यू करने के लिए हमें दोनों एवरेज प्रॉफिट में से जो हायर होगा उसको कंसीडर करना है. सो विच इज द हायर प्रॉफिट? It is 14,125. This average profit when multiplied with purchase year will give the amount of goodwill, which is coming rupees 56,500. I hope this question is clear. Please ensure when you are solving, when you are calculating the final answer, you are writing rupees. You are writing rupees. Also, whenever you are solving any question, do write formula first and then solve the question. Now coming to average profit method when past adjustments are made, starting with our question number 7. Asin and Shreyas were partners. इनका रेशियो है 2:1. एडमिट कर रहे हैं शाम को 1/5 शेयर के लिए. इस पर्पस के लिए गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट. तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है हमें. 2017, 18, 19 का प्रॉफिट गिवन है, 20 में लॉस है और 21 में अगेन प्रॉफिट है. गुडविल कैलकुलेट करने के टाइम इट वाज बीइंग ऑब्जर्व जो 17, 18 का प्रॉफिट है उसमें हमारा एबनॉर्मल लॉस सब्ट्रैक्टेड है. सो अगर लॉस सब्ट्रैक्टेड है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए उसको क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे. See, first year is ending on 31st March 17. So when did it started? It started on 1st April 16. Next year 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21. हमारे पास फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट बेटा गिवन है 1,25,000. सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है 2018 का दैट इज गिवन 1 लाख, जिसमें से हमने एबनॉर्मल लॉस दैट इज लॉस बाय फायर सब्ट्रैक्ट किया था. तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इसे ऐड करना है. देन 19 का प्रॉफिट है 1,87,500, लॉस ऑफ 62,500 एंड अगेन प्रॉफिट ऑफ 1,25,000. जब हम इन सबका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे बाय डूइंग टोटल डिवाइडेड बाय 5, वी विल गेट एवरेज प्रॉफिट रुपीज 5 लाख. और परचेज ईयर बेटा हमारे पास गिवन है 3. तो गुडविल निकालने के लिए जब हम परचेज ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से
what we will get? We will get the amount of goodwill. These questions are very, very easy. Children love doing these questions when they come in board exam. Question number 8. Madhu and Vidhi are partners. Ratio है 3:2. अब इन्होंने डिसाइड किया मनु को पार्टनर बनाने के लिए फॉर 2/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट. सेकेंड पॉइंट कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर, परचेज ऑफ 3 इयर्स, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट. 2021 में बेटा हमें प्रॉफिट गिवन है 30,000 का. 30,000 का प्रॉफिट है जिसमें एबनॉर्मल लॉस ऑफ 40,000 जो है वो सब्ट्रैक्टेड है, उसे ऐड करेंगे सो एज टू कैलकुलेट आवर नॉर्मल प्रॉफिट. 2020 में हमें लॉस गिवन है 80,000 का, जिसमें हमने वीआरएस का जो अमाउंट पे किया वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन विच इज अगेन एन एबनॉर्मल एक्सपेंस, एबनॉर्मल लॉस वी कैन से, और वी कैन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसे सब्ट्रैक्ट किया होगा तो इसे ऐड करेंगे सो एज टू कैलकुलेट आवर नॉर्मल प्रॉफिट which is 30,000. Then in the last year we are having profit of 1,10,000 और इसमें gain, now abnormal gain is included for ₹30,000 which is gain on sale of fixed asset. इसे subtract करेंगे. जब ये adjustment करेंगे what we will get our normal profit. Again I am reiterating the formula of normal profit. Normal profit बेटा क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, आप उस नेट प्रॉफिट में से अपने एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे और आप एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे. ए बी स्टैंड फॉर एबनॉर्मल. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर. नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग normal profits, the next step is calculation of average profits. We will do sum of 70,000, 30,000 and 80,000 divided by 3. Average profit is 60,000. This 60,000 needs to be divided by number of purchase year which is 2. So goodwill is coming as rupees 1,20,000. Now moving to our next question, question number 9. Tarang purchased Jyoti's business. Now one person is buying a running business of another. This is also reason of reconstitution of partnership firm. So profit shown by Jyoti's business are given. हमें 2019 का बेटा प्रॉफिट गिवन है 1 लाख इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन. तो गेन को माइनस कर देंगे बिकॉज इट इज एबनॉर्मल. वी हैव टू कैलकुलेट आवर नॉर्मल प्रॉफिट. 2020 में 1,25,000 का प्रॉफिट है जिसमें एबनॉर्मल लॉस सब्ट्रैक्टेड है, तो उसे ऐड कर देंगे टू नो आवर नॉर्मल प्रॉफिट. 2021 में हमारे पास प्रॉफिट है 1,12,500. इसमें हम इंश्योरेंस प्रीमियम को माइनस करेंगे. व्हाई? बिकॉज पेइंग इंश्योरेंस ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी इज अ नॉर्मल एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस. सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस. ये 12,500 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इट इज अ नॉर्मल एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस. बिजनेस का एक्सपेंस है क्योंकि बिजनेस की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है. Now we will calculate average profit by doing sum total of these normal profits, dividing it with 3. It is coming 1,12,500 और जब हम इसे परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास गुडविल का अमाउंट आ जाएगा. I hope this question is clear. Moving next, question number 10. अभय, बाबू एंड चारू पार्टनर्स हैं. रेशियो इनकी इक्वल है. दमन को पार्टनर बना रहे हैं फॉर इक्वल शेयर. इस पर्पस के लिए गुडविल वैल्यू करेंगे 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है. अब हमारे पास यहाँ गिवन है ऑन 1st April a car costing 1 lakh was purchased and debited to traveling expense. Purchase of car is not a revenue expenditure. It is a capital expenditure. खरीदी कब है? 1st April 2020 को. सो वो कहाँ आएगी? ईयर कब क्लोज होगा? 1st April 2020 को अगर खरीदी है
तो यानी 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, इस ईयर में हमने उसे एज एक्सपेंस मानकर, ट्रेवलिंग एक्सपेंस मानकर माइनस किया था अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये 1 लाख यहाँ ऐड हो जाएगा. बट इफ इट इज एन एसेट, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. डेप्रिसिएशन अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1 लाख को, तो कितना आएगा? 25%, 25,000. ऑल्सो देयर इज इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 में भी ऐड हुआ है और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 में भी ऐड हुआ है. तो इसको दोनों में से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. दोबारा से मैं आपको एक बार एसेट वाली एडजस्टमेंट बता रही हूँ. सी, वी नो दैट व्हेन वी आर बाइंग अ कार, it should be disclosed in balance sheet because it is a capital expenditure. हमें अपनी बैलेंस शीट में अपनी एसेट दिखानी चाहिए थी. 1 अप्रैल को हमने खरीदी है 1 लाख की. पूरा साल हम यूज करेंगे 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक. तो इट इज लाइंग इन दिस ईयर ओनली. अब हमने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी 25,000. कायदे से ये डेप्रिसिएशन हमारे पीएनएल अकाउंट में डेबिट होनी चाहिए थी. यहाँ पर हमारा 25,000 रुपीज आना चाहिए था, बट इंस्टेड ये 25,000 आता, यानी माइनस तो इसी को करना था, तो हमने यहाँ इसको माइनस कर दिया बिकॉज वी हैव टू रेक्टिफाई दिस एरर. इंस्टेड के हम अपने 25,000 रुपीज के डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करते, हमने पूरा का पूरा ये परचेज जो है कार का, वी शोड इट एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और हमने इसको पीएनएल में डेबिट साइड दिखा दिया. यानी इसने हमारे प्रॉफिट को 1 लाख से रिड्यूस किया होगा. इफ इट इज आवर पीएनएल अकाउंट, इट मस्ट हैव रिड्यूस्ड आवर नेट प्रॉफिट, इसलिए इसको यहाँ पर दोबारा से ऐड किया. सिमिलरली, अगर आपको इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मिल रहा है 10,000 का, इट मस्ट हैव बीन क्रेडिटेड टू योर पीएनएल अकाउंट. इसने आपके प्रॉफिट को इंक्रीज किया होगा, जबकि ये आपका नॉर्मल इनकम नहीं है. It is not your operating income, business income. That's why it needs to be subtracted. ये adjustments करने के बाद what we will get? We will get the amount of profit or losses which will be required to calculate average profit. हमारा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आ रहा है 1,50,000, सेकेंड ईयर 3,50,000, थर्ड ईयर 2019, फोर्थ ईयर 7 लाख, और फिफ्थ ईयर में लॉस आ रहा है, इसलिए इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है. एवरेज हमारे पास बेटा आया 2,35,000. अब इस एवरेज को मल्टीप्लाई करना है परचेज ईयर से, विच इज 4, टू कैलकुलेट आवर अमाउंट ऑफ गुडविल स्टैंडिंग एट ₹9,40,000. Moving to our next question, question number 11. Bhaskar and Pillai are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They are admitting Kanika into partnership for 1/4 share in profit. Kanika will bring her share of goodwill in cash. इस पर्पस के लिए हम गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 year. अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है, यानी हमें एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करना है. फर्स्ट ईयर में बेटा हमारे पास 50,000 का प्रॉफिट है, जिसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट विच इज एन एबनॉर्मल गेन वो एडेड है, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सेकेंड ईयर में वी आर हैविंग लॉस. इस लॉस के अंदर हमारा 30,000 का लॉस है, वो लॉस बाय फायर है, विच इज एन एबनॉर्मल लॉस, सो इट विल बी एडेड. देन प्रॉफिट हमारे पास लास्ट ईयर में गिवन है 70,000, जिसमें इंश्योरेंस क्लेम का पैसा इंक्लूडेड है. क्या हमें इंश्योरेंस क्लेम का पैसा बार बार मिलता है? इज इट रेकरिंग और इज इट रिलेटिंग टू योर बिजनेस? आंसर इज नो, it is not our normal income or operating income. That's why it is subtracted. Even interest or investment does not relates to normal business of a firm. That is why it is subtracted. So जब हम इन abnormal incomes को, gains को और losses को adjust करेंगे अपने years में, we will get our normal profit, which are standing at 45, 10,000 and 44,000. 45,000, 10,000 and 44,000.
नाउ वी विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हम इसे परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म की गुडविल आएगी। इसमें कनिका का शेयर कितना है 1/4, तो हम 66,000 का 1/4 कैलकुलेट करेंगे, which is coming 16,500. So how much amount Kanika is bringing in cash? 16,500. Now the last question. Sumit purchased Amit's business on 1st April 21. Goodwill value करनी है 2-year purchase of average normal profit of last 4 years. The past 4 years profits are given. अब इन प्रॉफिट्स में हमें एडजस्टमेंट करनी है। प्रॉफिट गिवन है 31 मार्च 18, 19, 20 और 21 का। 18 का प्रॉफिट है 80,000, 19 का 1,45,000, 20 का 1,60,000 और 21 का 2 लाख। सबसे पहली एडजस्टमेंट कह रही है एक एबनॉर्मल लॉस है जो एडजस्ट कर चुके हैं हम 18 के प्रॉफिट्स में। एबनॉर्मल लॉस सब्ट्रैक्ट हुआ होगा तो अब उसे ऐड कर देंगे। सिमिलरली हमने एक एसेट सेल की है ऑन प्रॉफिट एट गेन, 25,000 का गेन है जो 31 मार्च 19 के प्रॉफिट में एडेड है, तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। अब इंश्योरेंस तो बिजनेस के लिए ही है, बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, सो दिस एक्सपेंस विल बी सब्ट्रैक्टेड। जो सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, जो ओवरलुक हो गया है, आफ्टर डूइंग दीज एडजस्टमेंट्स वी विल गेट आवर नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर 4 years। 4th ईयर के प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है, तो इट इज स्टैंडिंग एट ₹2 lakh ओनली। नाउ वी विल कैलकुलेट आवर एवरेज प्रॉफिट बाय डिवाइडिंग दीज 4 years profit by 4, which is standing at ₹1,41,250. As the number of purchase year are 2, so our goodwill is 2,82,500. Okay, coming to this question. This question came in board exam. I have modified this question. This question is very, very important. Let us read the question first. Kabir and Fareed are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. Manik is admitted for 1/4 share in profit of the firm. At the time of admission of Manik, goodwill of the firm was valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years average profit. बच्चा सोचते हैं कितना आसान क्वेश्चन बोर्ड में आ गया है। आसान ये है। The profit of the last 3 years were 90,000, 1,30,000, 86,000. During the year 18-19, there was a loss of 20,000 due to fire, which was not accounted for while calculating the profit. अब जरा ध्यान से पढ़ो, which was not accounted, यानी ये लॉस हमारे 18-19 के प्रॉफिट में माइनस ही नहीं हुआ। बट अब बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में, फटाफट इस 20,000 रुपीज को यहाँ ऐड कर देंगे, जबकि हमें इस 20,000 को इग्नोर करना है। It is for the first time it came in board with word was not accounted, यानी ये काउंट ही नहीं हुआ। और मेजॉरिटी को बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया, बिकॉज सबने इसको एबनॉर्मल लॉस सिर्फ तक ही पढ़ा, आगे के वर्ड्स पर ध्यान ही नहीं दिया और इसको 18-19 के प्रॉफिट में ऐड कर दिया। So you have to be very cautious when you are doing. In CBSE exam 2020, although abnormal loss was given in the question, which was not accounted in that year's profit, thus it was not to be added back. But majority of students added it in that year's net profit. So one must take utmost care while reading the net profit in the question. बहुत ध्यान से पढ़ना। अब इसका सॉल्यूशन देखो, हमने सिंपली तीनों साल के प्रॉफिट्स को ऐड किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला और उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल। कहीं पर भी आपको उस लॉस को, एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट नहीं करना था, क्योंकि वो एडजस्ट हुआ ही नहीं है। तो यानी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स ही गिवन है। With this, we are through with our first method, average profit method. Thank you for watching this video. Stay connected.
and do subscribe my channel.